So today we are going to complete cost sheet, right? And this is the problem. We have already done one problem on cost sheet. This is the second one. You can take a pick of it and solve it, right? Because you will are going to definitely get a problem on cost sheet. This is a very important topic because as a company, everyone wants to compute the cost per unit. And how do you calculate cost per unit? It is the total cost divided by the number of units manufactured. क्लियर है? कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हो? टोटल कॉस्ट लीजिए, उसको किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा. जो कॉस्ट पर यूनिट आएगा, दैट इज द बेस टू फिक्स द सेलिंग प्राइस. इसलिए कॉस्ट शीट बनाना बहुत जरूरी है और आना चाहिए. Is it okay? So just go through that, take 10 minutes and solve it. Refer the format which I have already shared in the last class. You have to refer the cost sheet format which I have shared in the last class and try to make the cost sheet of the given problem. Remember, you have to calculate prime cost, then you have to calculate works cost, then you have to calculate cost of production, right? For goods sold, then you have to calculate cost of goods sold, then you have to calculate cost of sales, and then from sales, if you subtract cost of sales, what you get is profit.
do it fast. You can only learn by doing. Refer the cost sheet in your notebook, please. You have to make the statement of cost, that is cost sheet, and calculate the profit earned by the company as on 31st March 2022. मार्कर आ गया क्या? Completed? And you need to be a bit fast. कर लीजिए सर, एग्जाम में आएगा तब क्या करेंगे?
This paper is not easy. इसके बाद है from 11:15, 11:30 to 1:30. You should remember the cost sheet by heart. Write it down 2-3 times. You will learn it. You will learn the cost sheet, and then just you have to put the figures there. Like, let us start with the first one. So we are given the opening stock of raw material, right? We are given the closing stock of raw material, and we are given the purchase of raw material, right? So if you see your cost sheet, what it says, opening stock of raw material 3,000 plus purchase of raw material 1,10,000, total it, and from that total subtract the closing stock of raw material, right? What you will get? Raw material consumption. What you will get? Raw material consumption, consumption of raw material, which is also known as direct material, which is also known as direct material. There is no carriage on raw material. If it would have been there, we would have added carriage on raw material, carriage on purchase of raw material. But यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे. तो क्या है पहला स्टेप क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल minus closing stock of raw material. What you will get is raw material consumption. Is it okay? ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डायरेक्ट मटेरियल. अब उस डायरेक्ट मटेरियल में दो चीजें हमें ऐड करनी है टू फाइंड आउट व्हाट? प्राइम कॉस्ट. पहला डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस कह सकते हैं, डायरेक्ट लेबर बोल सकते हैं. तो लेट अस सी, डू वी हैव डायरेक्ट लेबर हियर? यस. सो वी हैव अ डायरेक्ट लेबर. सो अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर ऐड करता हूं, डू वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस हियर? नो. सो अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करता हूं, सो व्हाट वी विल गेट इज द प्राइम कॉस्ट. व्हाट वी विल गेट इज द प्राइम कॉस्ट. इज इट ओके? यहां तक किसी को कोई डाउट है? सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल minus closing stock of raw material, what you will get is the consumption of raw material, which is known as direct material. In that add direct labor. Is it okay? So अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा प्राइम कॉस्ट. Is it okay? अब इस प्राइम कॉस्ट में हमको क्या करना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं. क्या ऐड करने हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड. तो उस फैक्ट्री के अंदर और भी एक्सपेंसेस होंगे, राइट? उन सबको अब हमें ऐड करना है. लेट अस हैव, डू वी हैव फैक्ट्री ओवरहेड? यस, वी डू हैव फैक्ट्री ओवरहेड. बट वो ये कहता है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, वो 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर है. तो हमारी डायरेक्ट लेबर कितने हैं? 65,000 का 60%, हाउ मच इट कम्स टू? 39,000. सो फैक्ट्री ओवरहेड आप ऐड करिए 39,000 in prime cost. Is it okay? Right. इसके अलावा then what do you have work in progress? Yes, we do have work in progress inventory. Is it okay? So work in progress का inventory कितना है? Opening inventory कितना है? 4,000, right? और closing inventory कितना है? 6,000. तो क्या करेंगे हम? Opening work in progress को ऐड करेंगे और closing work in progress को माइनस करेंगे. इज इट ओके? अंडरस्टूड? सो जो आपका प्राइम कॉस्ट आया उसमें पहले फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करिए. 60%. आई डू नॉट हैव मार्कर राइट नाउ, सो दैट इज द रीजन आई एम
trying to explain it to you, right? Otherwise, I would have done it on board. So 60% of direct labor factory overhead. उसके बाद आप जो टोटल आएगा उसमें आप ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करिए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करिए. इज इट ओके? क्लियर है? राइट. सो आपका क्या आएगा इसमें? व्हाट यू विल गेट? फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट. व्हाट यू विल गेट? फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट. इज इट ओके? देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है और ये वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग है. व्हाई? एट द एंड ऑफ द ईयर एंड दिस इज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. तो जो बिगनिंग में होता है वो ओपनिंग होता है, जो एंड में होता है वो क्लोजिंग होता है. इज इट ओके? तो हमारा क्या आ गया यहां से? फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट आ गया. अब इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. व्हाट वी विल ऐड? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करिए. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इट सेज दे आर 5% ऑफ सेल्स. दे आर 5% ऑफ सेल्स. और सेल्स आपकी कितनी है? 2,75,000. इसका 5% कितना हुआ? 13,750. So add administrative expenses 13,750. Is it okay? Clear? Understood? Right. So उसके अंदर हम क्या करेंगे? What we will do? We will add opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods. हमेशा opening add होता है और closing minus होता है. So एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करिए वर्क्स कॉस्ट के अंदर और उसमें जो टोटल आएगा उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक को ऐड करेंगे 7,000 को और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को 8,000 को माइनस करेंगे. इज इट ओके? अंडरस्टूड. सो व्हाट वी विल गेट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. राइट? इज इट ओके? क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कोई डाउट है यहां पे? किसी को कोई डाउट है? राइट. अब आप क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस. नाउ सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ सेल्स. सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ सेल्स. दैट इज हाउ मच? 27,500. ऐड करिए सेलिंग एक्सपेंसेस को. राइट. सो व्हाट यू विल गेट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. उस कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हमारा टोटल जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया और हमारा सेल्स कितना है? 2,75,000. सब्ट्रैक्ट जो भी हायर है. अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स हायर है सेल्स से तो कंपनी को लॉस है और सेल्स अगर हायर है कॉस्ट ऑफ सेल्स से तो कंपनी को प्रॉफिट है. इज इट ओके? सो डिड यू गेट द आंसर? इज इट ओके? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज प्रॉफिट. सेल्स माइनस cost of sales is profit. Is it okay? Any doubt? Done? So we are done with the first one. We are done with the first problem of today. Right? Let us move down to the next problem please now. Okay, this is the problem. From the following information, you have to prepare a cost sheet for the month of December 2022. Right? And this is the problem. So make the cost sheet please. Make the cost sheet of the same.
you have to make the cost sheet of the same. Giving you 10 minutes to solve this. मार्कर मार्कर चलिए, असल में मेरा प्रैक्टिकल है ना, तो लेट मी जस्ट, चलिए ठीक है. और this is the another one. Do it fast. Thank you. You have the format of the cost sheet. Refer the format of the cost sheet and make it fast. You have to add. You have to add to calculate raw material consumption in, right? Opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material, and then add carriage on purchase of raw material. Yes. I'm trying to solve few problems in the class so that you guys can have practice, and but you have to practice more problems on this. नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में. अगर वो डायरेक्ट है तो प्राइम कॉस्ट में ऐड होंगे. अगर वो इनडायरेक्ट है बट वेजेस हैं, तो हम उसको कहां ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ऐड करेंगे. तो पहले प्राइम कॉस्ट निकाला हमने, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, उसके अंदर हमें दिया है कि नॉन प्रोडक्टिव वेजेस हैं. वेजेस तो हैं पर नॉन प्रोडक्टिव हैं, बट वेजेस होते कहां हैं? फैक्ट्री के अंदर. सो ऐड दिस इनटू दैट so that we can have a factory cost or works cost.
Okay, I hope all of you have done it. Or let me do it on board now. फोटो ले लिया था ना उसका? Okay. So this is the statement of cost as on 31st December 2022, right? Particulars, details, and amount. So we will have opening stock of raw material, opening stock of raw material, and that is 25,000 plus purchase of raw material, that is 21,900. If we add it, this is 0096 46,900 minus closing stock of raw material, that is 26,200. So what we get is 0070 20,700 plus carriage on purchase of raw material. And how much it is? 1,100. 1,100. So the amount it comes to 21,800. This is consumption of raw material, right? Which you can say this is direct material, right? Now, do we have direct wages? Yes. So we have direct wages. So we have direct wages here. How much it is? 17,200. Do we have direct expenses? Yes, we do have direct expenses also. Direct expenses, how much it is? 1,200. 1,200. If you add this is 0, 0, 2, 1, 7, 9, 10, 7, 8, 9, 10 and 1, 40,200, and this is what you call is your prime cost. This is your prime cost. Is it okay? That's the first thing which you have calculated. Prime cost is 40,200. So always remember, what is prime cost? Prime cost is equal to direct material plus direct labor or wages plus direct expenses. This is your prime cost. Maybe tomorrow, if in the midterm you have your multiple choice question and they may ask you, right? So you need to know what is the prime cost. Is it okay? Clear? Right. Now in this prime cost, what we will do? We will add factory overheads. Factory overhead. Do we have factory overheads? How much? 8,300. And is there any other overhead also? No. Yes, we do have non-productive wages. So we have to add non-productive
प्रोडक्टिव वेजेस, राइट। तो जब तक हम फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकालेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है कि ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो एक प्लांट के अंदर इनकर हुए हैं, जो एक फैक्ट्री के अंदर इनकर हुए हैं, जो एक वर्क प्लेस पे इनकर हुए हैं, वर्क्स में, मतलब माल बनाने में, गुड्स मैन्युफैक्चर करने में जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं। अंडरस्टूड? दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सो इसको ऐड करेंगे, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस आर 800। लेट्स ऐड इट एंड लेट्स गेट द टोटल। 0 0 13 1 49,300। एंड इसके अलावा डू वी हैव वर्क इन प्रोग्रेस? अभी कुछ करना है? अभी कुछ करना है वर्क इन प्रोग्रेस का? क्या करना है? Add opening work in progress and less closing work in progress, right? So अभी हमारा फैक्ट्री कॉस्ट तो नहीं निकला, क्लियर है? अंडरस्टूड? So अभी मैं हम क्या करेंगे यहां से? शुड आई रब दिस? ये रब कर दूं ऊपर का? ऑलराइट। So let's say 49,300. This I have taken here. Now add opening work in progress. Always remember, इन्वेंट्री का ना 3 फॉर्म होता है। पहला फॉर्म रॉ मटेरियल होता है, दूसरा फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और तीसरा फिनिश गुड्स होता है। इज इट ओके? और आगे जब आगे और पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि एक और फॉर्म भी होता है, राइट? दैट विल कम टू दैट यू विल लर्न लेटर ऑन, राइट? अभी केवल इतना याद रखो, इन्वेंट्री के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? दैट इज हाउ मच? 8200, 8,200. If we add it, this is 001, which is 005, and 987, 57,500 minus closing work in progress. That is how much? 9,100. 9,100. So this is 004, 48,400, and this is what you call known as factory cost. Is it okay? So this is your factory cost. Understood? Or works cost. Clear? Any doubt till this point? जब कॉस्ट शीट बनाओगे, ये जो कॉस्ट निकाल रहे हो इसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट, right? So the examiner, when the examiner is checking your answer sheet, he should very clearly make it out. This is the prime cost, this is the factory cost, this is the cost of goods sold, this is cost of sales, right? अब हम क्या करेंगे आगे? What we have to do in this now? We will add administration overheads. Administration overheads. How much they are? 32,000. 32,000. 004, 80,400. Do we have finished goods inventory? Yes. So add plus opening stock of finished goods. Opening stock of finished goods. How much it is? 17,300. 17,300. So it is 007,797 minus closing stock of finished goods. How much it is? Closing stock of finished goods is 15,000.
700. 15,700. So this is your 000 to 82,000. What is this? Cost of goods sold. Yes, cost of goods sold. So this is the another cost which you have calculated, right? 82,000. Anything which you have not understood? So हमने prime cost निकाला, हमने works cost निकाला, उसके बाद we have calculated cost of goods sold. Is it okay? Now in here, in this, what we are going to add? Selling and distribution expenses. Selling and distribution expenses. How much it is? 4,200. If we add it, do we have any other? Do we have any other? No, we do not have any other expense. So this is 86,200 is your cost of sales. This is your cost of sales. 86,200. Clear? Any problem you have till this point? Right? Now, after this, should I rub this? Okay. So, cost of sales which we have calculated is 86,200. How much is the sales of the company? 72,300. 72,300. So, company earned profit on this or loss? So, there is a loss of 009 and 13900. This is the loss which the company has made. Is it okay? Is it okay? Clear? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाला था हमने? 82,000. Okay. Fine. It's okay. Clear? यहाँ पे प्रॉफिट क्यों लिखा है इस प्रॉब्लम में? पता है क्यों लिखा है? बिकॉज मेरे इसमें प्रॉब्लम आ गया था. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मैंने 32,000 लिख दिया. अदर ये था कितना? 3,200. दैट इज द ओनली रीजन. यस, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया. दैट इज द रीजन वी हैव अ लॉस. बट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर. Is it okay? Clear? So this is the another problem which we have done on cost sheet. बनाना आ गया? Okay, now this is another problem. ये थोड़ा सा case study type problem है. The pen manufacturing company are producing two types of pens. This is the problem. Let us read it for you first. The pen manufacturing company are producing two types of pens, Deluxe and Popular. एक कंपनी है, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दो पेन बना रही है with a brand called Deluxe and Popular. दोनों का एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखा है उन्होंने 31 मार्च 1990 को. डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख के थे, डायरेक्ट वेजेस 1,12,000 के, प्रोडक्शन ओवरहेड 48,000. सो जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा था वो 3,60,000 था.
क्लियर? नाउ कंपनी ने क्या, जब ये बना रहा था तो कंपनी ने ये असरटेन किया कि जो डायरेक्ट मटेरियल है ना डीलक्स में, इट कॉस्ट ट्वाइस एज मच दैट ऑफ पॉपुलर टाइप. अगर पॉपुलर टाइप के अंदर एक्स कॉस्ट है तो डीलक्स में 2 टाइम्स है, मतलब 2x कॉस्ट है. इज इट ओके? डायरेक्ट वेजेस जो पॉपुलर के थे वो 60% थे ऑफ दोज ऑफ डीलक्स टाइप. क्लियर? प्रोडक्शन ओवरहेड जो था वो 30 पैसे पर पेन था फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ द पेन्स. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो था इट वाज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर. क्लियर? सेलिंग कॉस्ट जो है वो 25 पैसा था पर पेन फॉर बोथ द पेन्स. कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रोडक्शन किया? डीलक्स टाइप के 40,000 पेन्स बनाए और पॉपुलर के 1,20,000 पेन्स बनाए. राइट? दिस इज देयर. प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर डीलक्स टाइप ने 40,000 पेन्स बनाए, ऑफ विच 36,000 वर सोल्ड. 40,000 पेन में से 36,000 डीलक्स के पेन बेच दिए और पॉपुलर के बनाए 1,20,000 पेन्स, ऑफ विच 1 लाख वर सोल्ड. जो सेलिंग प्राइस था एक पेन का डीलक्स में वो ₹7 पर पेन था और पॉपुलर का ₹5 पर पेन था. सो हमको दोनों पेनों के लिए क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है और दोनों पेन का हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है. इज इट ओके? क्लियर है? अंडरस्टूड? सो दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम and I would like all of you to solve this. You have to make a statement of cost for both the pens. You have to make the statement of cost for both the pens. करिए. अब तक थोड़ा हम स्ट्रेट कर रहे थे, मैंने आपको वैल्यूज निकाल के दे रखी थी. Here you have to calculate the values now. But remember, the cost sheet format does not change. It will remain same. Attendance sheet दे दी. हाँ बस काफी है.
डू इट, करिए करिए। अटेंडेंस, बीबीओ बीएमएस देख लीजिए। Do it fast, please. And please rotate the attendance sheet in the class. दोनों का
क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल इन डीलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस एज मच दैट ऑफ पॉपुलर. टोटल टोटल कमोडिटी कितना प्रोडक्शन किया? 40,000. और डीलक्स का जो कॉस्ट है वो 2 टाइम्स है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 40,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना हुआ? 80,000. इज इट ओके? और उसका 1,20,000 है. इंटू 1 करेंगे तो कितना हुआ? 1,20,000. 80,000 और कितना? 1,20,000. अच्छा, इसका एक और तरीका है. डीलक्स जो है वो 2 टाइम्स ऑफ पॉपुलर है. तो मतलब दोनों का जो रेशियो हुआ वो 2:1 का हुआ है ना. इज इट ओके और नॉट? करो करो, आगे करो. You have clicked the photograph of this. Can we do photograph? Click कर लो so that you can see, because I would be doing it. इतने ही प्रॉब्लम है, आप इसका ही कर लो बस केवल.
So this is the whole problem. Here what you will learn in this problem is, in the previous problem you are given the values of the opening and closing stock, right? But here you are only given the quantity of the finished goods, closing stock of finished good which is available, but you do not know the value of it, right? So that is what we are going to learn in this problem, how to value the closing stock of finished goods. Is it okay? Because here you do not have the opening and closing of raw material, you do not have the opening and closing stock of work in progress, but yes, you have the opening and closing stock of finished goods. Is it okay? Understood? क्यों? हमने 40,000 पेन बनाए डीलक्स के और कितने बेच दिए? 36,000. अभी कितने बचे हैं हमारे पास स्टॉक में? 4,000. सिमिलरली हमने पॉपुलर के 1,20,000 पेन बनाए. द कंपनी हैज सोल्ड 1 लाख पेन्स, राइट? अभी कितना बचा है स्टॉक में? 20,000. हमें क्वांटिटी पता है बट इसका वैल्यू नहीं पता. तो हमें ये नहीं पता कि हम अपने टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कितना क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा. इज इट ओके? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस प्रॉब्लम. सो particulars, right? So we have two pens, one is a deluxe, right, and another is a popular, right? So in this what we will do, okay, let's say per unit and total amount. We can do that per unit and total amount. This is for popular and deluxe. Clear? Let's do this. This is the format. So हमको दो पेन, कंपनी दो पेन बनाती है, डीलक्स और पॉपुलर, और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इट इज अ कंबाइंड कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख रुपए है, वेजेस 1,12,000 है, प्रोडक्शन ओवरहेड 48,000 है, टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर बोथ द पेन इज 3,60,000. इसके बाद कंपनी ने कुछ इक्वेशंस, कुछ इंफॉर्मेशन दी है. लेट्स डू इट ऑन दैट बेसिस. इज इट ओके? सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज रॉ मटेरियल. क्लियर? व्हाट वी आर गोइंग टू डू? रॉ मटेरियल, और वी कैन कॉल इट डायरेक्ट मटेरियल. व्हाट वी कैन डू? वी कैन कॉल इट डायरेक्ट मटेरियल. ओके, यहां पे मैं कैलकुलेशन करूंगा. अभी आपका डायरेक्ट मटेरियल टोटल कितना है? सो डायरेक्ट मटेरियल इज 2 लाख. अभी जो 2 लाख है ये दोनों के लिए है, डीलक्स के लिए और पॉपुलर के लिए. इज इट ओके? नाउ देयर इज एन इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन दैट डायरेक्ट मटेरियल जो डीलक्स के अंदर है, इट इज ट्वाइस एज मच ऑफ दैट पॉपुलर वन. इज इट ओके? मान लेते हैं कि अगर डीलक्स में फॉर एग्जांपल
What it says is कितना कितना यूनिट बनाया हमने 40,000 units. So let me write down 40,000 units here. Units are 40,000 and here units are 1,20,000. These are the units which have been produced by the company. Units produced. Clear? Right. So 40,000 units. It is twice. Twice means 40,000 into 2. For example, this is how much? 80,000. How many units were made for this? 1,20,000 units, and it is equal to 1,20,000 into 1, which is equal to 1,20,000. Is it okay? Understood? Right? So अगर मैं देखूं तो इनका रेशियो कितना हुआ? 80:120 का रेशियो हुआ. क्लियर है? What it means? It means 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12:3 का रेशियो हो गया. अंडरस्टूड. सो अगर मेरे को डी की कॉस्ट निकालनी है तो 2/5 इंटू 2 लाख एंड 3/5 इंटू 2 लाख विच इज इक्वल टू हाउ मच? 80,000 एंड विच इज इक्वल टू हाउ मच? 1,20,000. इज इट ओके? 2 लाख ये टोटल है. यस. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड. पहली इक्वेशन में क्या दिया है कि डीलक्स की जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो ट्वाइस है पॉपुलर से. राइट? सो दिस इज हाउ मच? 1 लाख. दिस इज 80,000 एंड दिस इज 1,20,000. सो अगर मैं पर यूनिट निकालूं तो ये कितना आया? 2 रुपीज. ये कितना आया? 1 रुपी. इज इट ओके? अंडरस्टूड. टोटल कॉस्ट 80,000 है. इसको डिवाइड करेंगे 40,000 से तो पर यूनिट कितना आया? 2 रुपया. 1,20,000 है. 1,20,000 को 1,20,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कितना आया? अंडरस्टैंड हाउ डू यू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. इज इट ओके और नॉट? कितनी, अब जैसे फॉर एग्जांपल 80,000 टोटल कॉस्ट है मटेरियल की. कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है? 40,000. तो पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई? 2 रुपया. इज इट ओके? अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो ये फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. इज इट ओके? सो डायरेक्ट मटेरियल हो गया. अब क्या करेंगे यहां पे हम? डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस. लेट्स डू इट अगेन फॉर डायरेक्ट वेजेस. यहां तक कोई डाउट है? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? And remember, when you are solving such problems, working notes are very important. You are not supposed to calculate all this information at the back of your answer sheet. आप simultaneously ऐसा फॉर्मेट बनाइए और अगले पेज पे ही आप वर्किंग नोट्स खोलिए और ये सारी कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट्स में दिखानी पड़ेंगी. रिमेंबर, वर्किंग नोट्स नीड टू बी द पार्ट ऑफ योर आंसर. It should not be in a rough work kind of a thing. Clear? Now next is direct wages. Direct wages are 1,12,000. Right? अब ये हमको segregate करना है डीलक्स और पॉपुलर के अंदर. Now equation says that direct wages जो पॉपुलर के हैं they are 60% of those of deluxe. How will you calculate it? Anyone who has done it? Direct wages जो पॉपुलर के हैं they are 60% those for deluxe type. You have done it? How much is the amount? 70 and 42,000. Okay. 70 and 42. How you have calculated it? Okay. Okay. हमें
डीलक्स के वेजेस तो पता नहीं है, तो अगर मैं डीलक्स के वेजेस को एक्स मानूं, डीलक्स के वेजेस को क्या मानता हूं, एक्स मानता हूं, तो पॉपुलर के जो वेजेस होंगे वो कितने होंगे, 0.60 ऑफ एक्स। यस और नो, क्लियर है। अब हमारे टोटल वेजेस क्या हैं, 1,12,000, राइट। कैन यू कैलकुलेट इट नाउ। मैंने आपको एक रेशियो दे दिया कि डीलक्स के जो वेजेस हैं वो एक्स हैं और पॉपुलर के जो हैं वो 60% ऑफ डीलक्स है। नाउ कैलकुलेट द टोटल वेजेस नाउ। इज इट सेम और इज इट सम डिफरेंट, कोई डिफरेंस है या सेम है? ट्राई टू सॉल्व इट, डू इट। सेवेंटी, ओके। एक बार चेक करो दोबारा से प्लीज, जस्ट चेक इट वंस मोर। डीलक्स के वेजेस कितने आ रहे हैं, डीलक्स के डीलक्स के 70,000 आ रहे हैं और पॉपुलर के 40,000 आ रहे हैं। ओके ओके, कितने यूनिट्स बनाए हमने इसके, 40,000। हम डीलक्स पे कितना वेजेस पे कर रहे हैं, एक्स रुपीस, तो 40,000 पे कितना पे करेंगे, 40,000 एक्स। क्लियर है। हमने कितनी यूनिट्स बनाई पॉपुलर की, 1,20,000। कितना एक यूनिट पे कितना पे कर रहे हैं, 0.60 एक्स, तो कितना हो गया 1,20,000 इंटू 0.60 एक्स। इज इट ओके, राइट। अगर ये मेरे टोटल वेजेस है, यस और नो, राइट। सो 40,000 एक्स प्लस अगर मैं करूं तो ये कितना हुआ, 70,000 एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 1,12,000। It means 1,12,000 x is equal to 1,12,000. Therefore, x is equal to how much? ₹1 per unit. ₹1 per unit. हम कितना वेजेस पे करेंगे इसको कितना पे करेंगे और इसको कितना पे करेंगे, हैव यू गॉट दिस आंसर? यही था क्या, ये तो नहीं था, ये रिवर्स था, रिवर्स था। सो अंडरस्टैंड दिस कि यहां पे आपने क्या माना कि हम एक्स रुपी पर यूनिट पे कर रहे हैं, किस पे, डीलक्स पे। टोटल यूनिट कितना बनाया, 40,000 यूनिट बनाया, तो टोटल वेजेस हमने जो डीलक्स पे करा वो इतना पे करा और पॉपुलर पे इतना पे करा, दोनों को ऐड करा तो टोटल वेजेस हमारे इतने होने चाहिए, पर यूनिट निकल गया। इज इट ओके? तो ₹1 पर यूनिट हमने वेजेस पे करा है लेबर को, एक यूनिट बनाने के कितने रुपए पे करे हैं, ₹1 पे करा है। इज इट ओके और नॉट, राइट? सो दिस इज फॉर डीलक्स, इट इज हाउ मच,
Direct wages is 40,000 and for this is how much? 72,000. Is it okay? Understood? Clear hai? Have you understood or not? Right. Calculate karo. So this is 1 per unit and how much this comes to? Nikalo per unit nikalo wahan pe. How much it comes to? How much it comes to per unit? 60 paisa? 60 paisa. This is 3. This is 1,20,000. This is 1.60 and this is 1,92,000. ये आपकी क्या आ गई है? प्राइम कॉस्ट. क्लियर? अंडरस्टूड? अब इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे व्हाट? फैक्ट्री और प्रोडक्शन ओवरहेड है. इंस्टेड ऑफ फैक्ट्री द वर्ड गिवन इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स. रिमेंबर ये वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर. वर्किंग नोट्स आपका पार्ट होना चाहिए आंसर का. नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड इट सेज 30 पैसा पर पेन फॉर बोथ टाइप्स. 30 पैसा 30 पैसा तो 0.30 right? So this will be how much? 12,000 and this will be how much? 36,000. Clear? Any doubt till this point? यहां तक कोई डाउट है? क्या दे रखा है? फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं? 30 पैसा पर पेन फॉर बोथ टाइप्स ऑफ पेन्स. Is it okay? Clear? So this is your what is this? Cost of sorry, this is what we call as factory cost. This is your factory cost or works cost. 3.30, 1,32,000, 1.90 and this is 2,28,000. Is it okay? Any doubt till this point? आपका वर्क कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया. अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. नाउ ऐड administration overhead. Now question says that administration overhead for each type was 200% of direct labor. जितना डायरेक्ट लेबर है उसका 200% जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है. तो आपका डायरेक्ट लेबर कितना है? 40,000. इसका 200% कितना हुआ? 100% तो 80,000 हुआ. 200% 1 lakh. आर यू श्योर? कैलकुलेट करो. 200% of 40,000. या सिंपल मैथ्स है प्लीज. 100% तो डबल होता है. कैसे? 1,40,000, 20,000. ओके भाई मेरा 40 कैसे निकालोगे? 40,000 तो मेरा है ही प्लस 200% ऑफ 40,000. हाउ मच इट कम्स टू? 1,20,000. क्लियर है? 200% ऑफ योर व्हाट? डायरेक्ट लेबर. तो ये कितना हो गया? 1,20,000. इसका 40% 200% निकालो इसका. Find out 200% of this. How much is the direct wages? 72,000 plus 200% of 72,000, right? So it is 72,000 plus 1,44,000. How much it comes to? 6,000. 2,16,000. 2,16,000. This is 2,16,000. Now calculate per unit please. Per unit कैसे निकालोगे?
मैंने बताया कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो टोटल कॉस्ट कितना है 120, यूनिट्स प्रोड्यूस इज हाउ मच 40, हाउ मच इट कम्स टू 3.00। ये कितना है 2,16,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, कैलकुलेटेड हाउ मच इट कम्स टू 1.8, 1.80। So this is 6.30, this is 2,52,000, right? This is 3.70 and this is 4,44,000. Administration overhead are 200% of direct labor. 200% of direct labor. Is it okay? Right? हाँ. अच्छा, एक चीज इसमें आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड हियर, 200% जो डायरेक्ट लेबर का है वो हम जब किसी को पे करते हैं, नॉर्मली हमने एक चीज पढ़ी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है और फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है और फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में सेम रहता है, ये हमने पढ़ा है। अभी हमने क्या, अभी लिखना नहीं कुछ भी प्लीज, डोंट राइट एनीथिंग। हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारा क्या है 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। हमने क्या करा, हमने करा कि इसको 40,000 का हमने क्या करा 200% ले लिया, मतलब 40,000 प्लस 40,000 प्लस 200% ऑफ 40,000, हमारा ये आ गया 1,20,000। क्लियर? अब एक चीज और अप्रोच है, ये हमने करी टोटल अमाउंट से, इसी को अगर मैं पर यूनिट से करूं तो लेट मी सी पर यूनिट से क्या होता है। मेरी डायरेक्ट वेजेस की पर यूनिट कितनी है 1 रुपी प्लस 200% ऑफ 1 रुपी, हाउ मच इट कम्स टू ₹3। इज इट ओके? सो वी हैव टू चेक इट आउट कि टोटल अमाउंट से करें या पर यूनिट से करें। क्लियर है? अंडरस्टूड? नॉर्मली हमें हमेशा पर यूनिट से करना चाहिए रादर देन टेकिंग टोटल अमाउंट। इज इट ओके? अंडरस्टूड? अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूं, एक और एरर है, एक और एरर बताता हूं। ये अमाउंट कितना है, टोटल करो, ये अमाउंट कितना है 3,36,000। क्लियर है? ओके। अब हमारा जो यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड था, डायरेक्ट लेबर थे, वेजेस कितने थे 1,12,000। सो अवर डायरेक्ट वेजेस वर 1,12,000 एंड क्वेश्चन सेज कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो 200% डायरेक्ट लेबर का है। सो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालूं किसका 200% ऑफ, तो कैन आई सी दैट दिस इज इक्वल टू दैट मच। सो 1,12,000 प्लस 200% ऑफ 1,12,000,
Let me just calculate it how much it comes to. 1,12,000 plus 2,24,000. How much it comes to? 3,16,000. Is it 3,16,000? 3,36,000? Yes or no? Clear है? So we can check it at number of ways. यहां तक कोई डाउट हो गया? यहां पे कोई डाउट है या क्लियर हो गया? Understood? Okay. अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक है. हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक? हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक? कितना यूनिट बचा क्लोजिंग स्टॉक का? क्या करोगे यहां पे? माइनस करोगे व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक. इसका कितना यूनिट बचा? डीलक्स का 4,000 unit, and you have to calculate it at what price? This price. Is it okay? You have to calculate the closing stock at the per unit cost. 4,000 यूनिट बची. उस यूनिट का जो वैल्यू था वो कितना था? 6.30. So 4,000 into 6.30. How much it comes to? How much? 25,200. और इसका कितना था? How much it was? 20,000 into 3.70. 74,000. Right? So what you will get from here is cost of goods sold. Calculated. Cost of goods sold. सेलिंग कॉस्ट अभी आएगा आगे. क्या वो कुछ एरर है? हाँ पूछो पूछो. अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हो. वैसे मेरे को डाउट है लेकिन तुम लोग पूछ ही नहीं रहे हो. आई जस्ट वांट यू गाइस टू कम आउट. यहां पे अभी कोई एरर है. वो क्या एरर है? हैं? What is that error? Please find out. This is how you will learn. Find out the mistake which we have done here. वेरी गुड. हमने क्या किया था? 1,12,000 प्लस 200% ऑफ 1,12,000 किया. तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई इतनी तो है ही, इसके ऊपर और 200% है, विच इज वेरी गुड, विच इज रॉन्ग. सो हमें क्या करना था? स्ट्रेट 200% ऑफ 1,12,000 करना था. है? बिल्कुल डबल होगा. तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 2 लाख केवल 24,000 है. दिस इज द टोटल अमाउंट विच यू हैव टू सेग्रीगेट बिटवीन डीलक्स एंड पॉपुलर. हाउ मच इट कम्स टू? नाउ टेल मी हाउ मच इट विल बी. हाउ मच इट विल बी? हाउ मच इट विल बी? टेल मी. दिस इज 80,000 एंड दिस इज 1,44,000. ग्रेट. अब इसका पर यूनिट कितना हुआ? दिस इज 2 रुपीज एंड इसका कितना हुआ? कैलकुलेटेड. हाउ मच इट विल बी? 1 पॉइंट. कैलकुलेटेड. हाउ मच इट विल बी? 1,44,000 divided by 1,20,000.
1,44,000 divided by 1,20,000. 1.2. So if we add this, this is 5.30 and this is 3.10. Now if we have to calculate the closing stock, 4,000 multiplied by 5.30. 4,000 divided by 5.30. Multiply 5.30. How much it comes to? 31,000. पहले इसका टोटल कर लेते हैं. 5.30. This is 2,12,000. This is 2,1,7, 3,72,000. Now 4,000 into this. 4 3 are 12, 1, 21,200. Right? And for this is how much? Calculate for this. 20,000 into this. This is 62,000, right? Okay, this is 62,000. That's the closing stock. So what we get here is 1,91,000 is cost of goods sold and this is 3,10,000. Calculate the value. 21,200 को डिवाइड करो 40,000 से, कितना आया? पर यूनिट निकालना है. पर यूनिट का फॉर्मूला विल नॉट चेंज. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड. हाउ मच इट कम्स टू पर यूनिट? 21,200 divided by 40,000. 0.53. Okay, so it is how much? 7. 12 minus 5 is 7. This is 4.77. And for this, how much it comes to? 62,000 divided by 1,20,000. You have to calculate. You need to have calculator with you. How much? 0.516. Can we keep it 5.2? Right. So this is 8. This is 5. This is 2.58. So ये आपका cost of goods sold आ गया. Right? कोई doubt है अभी? 198. Uh, 800 and 0. Okay, 1,90,800. So calculate it again if you can calculate it. 1,90,800 divided by 40,000. How much it comes to? 4.77 ही आ रहा है ना. ठीक है, चलो. All right. चलो. अब next last step है. Last step is what we have to do is add selling cost in this. We have to calculate selling cost. How much is the selling cost? Selling cost is 25 paisa per pen for both the pens. 25 paisa. 0.25 multiplied by 40,000. How much it comes to? 10,000 for this. How much it comes to? This is 30,000. I believe so. I may be wrong. Just ऑलरेडी दे रखा है. सेलिंग कॉस्ट जो है इट इज 25 पैसा पर पेन फॉर बोथ द टाइप्स. इट इज ऑलरेडी गिवन. कैलकुलेशन ठीक है. 0.25 को किससे मल्टीप्लाई? बेचे कितने हैं? अच्छा 36,000 यहां बेचे हैं और 0.25 ठीक है बिल्कुल. तो सेलिंग कॉस्ट कितनी है? हमने कितना बेचा? 36,000 पेन बेचे. सो 0.25 into 36,000 कैलकुलेटेड फास्ट. 9,000 राइट. सो दिस इज 9,000 एंड यहां कितने बेचे हमने? 1,00,000. सो दिस इज 25,000 राइट. सो नाउ कैलकुलेटेड. दिस इज 205.02. This is 2.83. This is 800, 1,99,800. This is 3,35,000. Is it okay? This is your cost of sales. Can we calculate sales now? Can we calculate sales now from here? What it says is the selling price
For deluxe is 7. For deluxe it is 7 rupees. And for popular it is 5 rupees. So कितना यूनिट कितना कितना बेचा था हमने, कितनी यूनिट बेची है? 36,000. 36,000 multiplied by 7, how much it comes to? 2,52,000. And for this 5 into 1 lakh is 5 lakh. So just calculate, this is what you call is your profit. So if you calculate, this is 8, 9, 1.98 and this is 7, 1.2.17. This calculated it, this is 200 to 5, 52,200, right? And calculated this for, this is 1,65,000. So this is the profit per unit for deluxe and popular, and the total profit that the company has generated from this. This is how you have to make. The only best thing, the important thing is, which you have to learn is this, how you are going to calculate it. Closing stock. Closing stock, you have to always calculate it on the price which you have calculated, right? Understood? Is it clear? So this finishes your cost sheet. Practice more problem, please. We have done almost 5 problems in cost sheet. 4 today and 1 in the last class, right? So try to solve the problems more on cost sheet. Clear? Any doubt, please?